So welcome students to the class of IWT. So previous lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ frames ਦਾ concept ਜੋ ਹੈ ਉਹ complete ਕੀਤਾ ਸੀ, but ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ pending ਹੈ, that is inline frames. So inline frames ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, so ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. So inline frames ਨੂੰ basically I frame ਵੀ basically ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. So ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ quick ਇੱਕ example ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. W3 ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ example refer ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਈ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਬਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੇਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਫਰੇਮ ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ. ਆਈ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਈ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੇਮ ਸੈੱਟ ਤੇ ਫਰੇਮ ਟੈਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ. ਫॉर एग्जांपल w3schools.com ਇੱਥੇ ਦੇਤਾ. ਅਗਰ ਮੈਂ w3 schools ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ google.com ਦੇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ. ਸੋ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੋ ਹੈ HTML ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਸੋ w3schools.com ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਈ ਫਰੇਮ. ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, that is ਫਾਰਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੋਲਡਰ ਸੀ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ, that is forms, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ .html. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਟੈਗ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਲੇਆਊਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਸੋ HTML5 ਐਂਡ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਾਰਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਸੋ ਫਾਰਮਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਉਹ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ HTML ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੈਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਟਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਨਾਓ ਫਾਰਮਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਸੋ ਫਾਰਮਸ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? Forms use input elements to collect the data from the user, such as text field and check boxes. So ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਟ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਡੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਫਾਰਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਫੋਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ HTML ਫॉर ਅ ਫਾਰਮ, ਸਪੈਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਫਾਰਮ. ਦੇਖੋ, ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ. ਦੈਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਰਮਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਰਮਸ. ਫॉर एग्जांपल ਸਰਚ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੌਗਇਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਸ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਜ਼ ਇਟ ਫਾਈਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ. ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ.
एंड उस तो बाद है अपने को टाइप ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स किद्दां किद्दां दे हुंदे ने। सो फॉर्म एलिमेंट समझण तो पहला फॉर्म टैग देख लैंदे आपां। फॉर्म टैग क्रिएट करने के लिए सिंपली लिखो जी फॉर्म एंड उस तो बाद ऑटोमैटिकली देखोगे इत्थे एक चीज होर ऐड होगी दैट इज एक्शन। एक्शन का मतलब की है कि जदों ही ये फॉर्म का डेटा सबमिट होए यह जिहड़ा फॉर्म का डेटा ये किस पेज के उपर जाए। फॉर एग्जाम्पल जो इस फॉर्म का डेटा है उसनू कौन हैंडल करता है, उसनू रदे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैंडल करदियां ने। एक प्लीज हमेशा याद रखियो HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML इज ओनली अ मार्कअप लैंग्वेज जिहड़ी कि वैब डिजाइनिंग दे लई वैबसाइट्स बनाने दे लई यूज की जाती है। इस दे विचों कोई असी प्रोग्रामिंग दे कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर पावांगे, इफ एल्स नहीं यूज कर सकते असी, ठीक है ना। तो वेरिएबल्स नहीं क्रिएट कर सकते, वो सारा कितने करांगे, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज च करांगे। मान लो असी जो डेटा है फॉर्म का वो PHP के पेज के उपर भेजना है, तो मैं इत्थे PHP का पेज कोई बना के उत्थे मैं लिखूंगा कि मैं PHP के पेज के उपर डेटा भेजना चाहता, किहड़े पेज के उपर भेजना चाहता। एंड अगर मैं एक्शन नू खाली छड़ दिना तो दैट मीनस कि मैं जो फॉर्म का डेटा है वो मैं किसी पेज से नहीं भेजना चाहता, वो मैं इसे पेज के उपर वापस लिया चाहता, यानी फॉर्म्स के उपर ही, ठीक है। सो एक्शन का मतलब यह है। उस तो बाद एक चीज होर अपने को आ जाती है दैट इज मैथड। मैथड की है, मैथड दो तरह के होंगे बेसिकली, गेट ते पोस्ट। हुण गेट मैथड का की रोल है। सो गेट मैथड का आप पहला रोल देख लेने, व्हाट इज द रोल ऑफ गेट एंड पोस्ट मैथड। सो गेट वर्सेस पोस्ट। सो गेट द बेसिक रोल की है एंड पोस्ट का रोल की है। सो तुसी इत्थे एक एग्जांपल देखो। सो जो आ वाली एग्जांपल है इस दे विच जिवें तुसी देख पा रहे हो कि जदों ही मैं गेट मैथड यूज किया है तो ऊपर एक जिहड़ी URL बनती है मेरी, ठीक है ना। सो इहनूं की कहने आपां URL कहने हैं, ठीक है, जिहड़ी कि वैबसाइट का पूरा एड्रैस हुंदा। उस दे नाल ध्यान नाल देखो इत्थे क्वेश्चन मार्क लग के सारी डिटेल आ रही है। नेम ये वेरिएबल हो गया, ये उसकी वैल्यू होगी, एंड पाके दूसरा वेरिएबल स्टार्ट हो गया, ये उसकी वैल्यू होगी, फिर एंड पाके तीसरा वेरिएबल स्टार्ट हो सकता है इक्वल टू उसकी वैल्यू हो सकती है। एंड इदा करते करते आप काफी वेरिएबल्स इत्थे ऐड कर सकते, ठीक है। जिवें आ देखो बेसिकली मैं तुहानूं होर नहीं कुछ दसदा, तो तुसीं आ देखो जिवें आ सारी डिटेल्स आ रही ने अपने कोल, ठीक है ना। एंड उस तो बाद अपने कोल की है जिहड़ा तुहाडे कोल जिहड़ा गेट मैथड है, ये मैथड दे विच दो लिमिटेशन ज्यादा होंदियां ने। एक तो यह कि तुसी गेट मैथड दे नाल जो डेटा सेंड करना है, जो फॉर्म के थ्रू डेटा सेंड करना है, वो तुसी लिमिटेड सेंड कर सकते हो, ज्यादा डेटा नहीं सेंड कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज कि तुसी नहीं चाहोगे कि तुसी अपना यूजर नेम ते पासवर्ड ऊपर इदां विजिबल करके सबमिट करो, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल की है खतरनाक, ठीक है ना। सो उदा असी यूज नहीं करना, असी सिर्फ वो चीज यूज करनी है जिहड़ी साडी सिक्योरिटी वाइज ओके है, मतलब असी उसनूं ज्यादा कह लीए कि ज्यादा इन्नी इंपॉर्टेंस नहीं है साडे लई, ठीक है ना। साडे लई अगर असी उसनूं पास भी कर दिंदे तो साडे लई सेफ है। जिवें सर्च पास कर सकते हो तुसीं, ठीक है ना, कोई सर्च कीती है तुसीं कोई चीज वो पास कर सकते हो, बट यूजर नेम एंड पासवर्ड कदे भी इदां पास नहीं करना। वो किद्दां पास करना है, वो पोस्ट मैथड दे नाल करना। पोस्ट मैथड दे नाल डेटा जो है वो सारा सीक्रेटली जाता है एंड ऊपर विजिबल कदे भी नहीं हुंदा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। सो गेट वर्सेस पोस्ट द ए मेन डिफरेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट जो है साडे कोल असी फिलहाल इत्थे कोई भी मैथड यूज कर सकते हैं। अगर तुसी कोई भी मैथड यूज नहीं करते, ठीक है, देन बाय डिफॉल्ट तुहाडे कोल गेट मैथड आ जाता है। तो अगर तुसी मैथड नहीं यूज करते, ये हो गया जी फॉर्म टैग। ना फॉर्म टैग दे विच सब तो पहली जिहड़ी चीज है वो किहड़ा एलिमेंट हुंदा, वो असी एलिमेंट देखदे हां। सब तो पहला हुंदा साडे कोल टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। सो असी की क्रिएट करांगे, असी मान लो इसनूं थोड़ा जा वधिया बना दिंदे हां। वधिया बनाउण दे लई असी की करांगे, फॉर्म टैग यूज कर लिया, इस तो बाद असी एक टेबल बना रहे सिंपल, ठीक है। टेबल दे विच एक आपां रो बना लैंदे हां। सो पहली रो दे विच आपां एक TD लिख लैंदे हां, आपां लिखदे हां इत्थे नेम, ठीक है। एंड उस तो बाद TD दे विच असी इत्थे की लिख लैंदे हां अपना इनपुट, इनपुट
टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। फिलहाल इन्ना ही देखना, ठीक है ना। एंड इसनूं आपां की करते हैं, रन कर लैंदे हैं ब्राउजर दे विच, एंड उस तो बाद इसनूं देखते हैं कि अपने कोल किदां दा विजिबिलिटी है। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है इत्थे तक? यस सर। ओके, नाउ इसके ऊपर तुसी टाइप कर सकते हो कुछ भी चाहो तो तुसी यू कैन टाइप, ठीक है ना। सो डेटा तुसी सबमिट करना है, बट याद रखियो हमेशा पासवर्ड इत्थे कदे भी नहीं लिखना। पासवर्ड दे लई कुछ होर चीज हुंदी है, वो आपां देखदे हैं हुण। उस तो बाद इस दे विच कुछ होर चीज़ां भी हुंदियां ने, कोई होर एट्रीब्यूट्स भी हुंदे ने। हमेशा याद रखना, एक तो एट्रीब्यूट है टाइप, एक एट्रीब्यूट होर आपां यूज करते हैं इत्थे, दैट इज कॉल्ड नेम। ये नेम एट्रीब्यूट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जदों थोड़ा डेटा अगले पेज पे जाएगा, जिथों के वो फर्दर फाइनली डेटाबेस च जाके स्टोर होएगा, ਤਾਂ स्टोर करन दे लई बेसिकली जदों ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫॉर एग्जांपल मैं अपना लिखता ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਨੇਮ। तो मैं जदों भी ये मान लो submit.php वाली फाइल पे जाएगा सारा डेटा, उत्थे जाके मैं माई नेम दे नाल इस डेटा नू एक्सेस कर सकूंगा, यूज कर सकूंगा, ठीक है। सो उस लिए ये जरूरी है। एंड ये हमेशा याद रखना कि जेड़ा नेम तुसी ले लिया, जिवें हुण माई नेम ले लिया इत्थे, तां माई नेम अगे जाके दोबारा नहीं लिखोगे, एक बार ही लिखना है। उस तो बाद इसनू आईडी देनी है, आईडी भी दे सकते हैं। ये तुसी देखोगे आईडी ते नेम सेम हो सकते हैं, आ दोनों चीज़ां आपस च सेम हो सकती हैं, ठीक है ना। एंड आ आईडी क्यों लिखी असी, क्योंकि इसके ऊपर असी काम करांगे कल नूं जावास्क्रिप्ट नाल कंट्रोल करना है, जे क्यूरी दे नाल इस पर्टिकुलर फील्ड नूं कंट्रोल करना है, तो उत्थे सानू आईडी की जरूरत पैंदी है। सो इस करके आईडी नूं भी लिख लिया करो नाल, ठीक है। नाउ ये चीज़ क्लीयर होगी। उस तो बाद इस दे विच एक दो चीज़ां होर ने जिहड़ियां तुसी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुसी चाहुंदे हो कि जिहड़ा ये वाला फील्ड है इस दे विच मैं कुछ लिख ना सका, मैं सिर्फ इनू रीड ओनली बनावां, तां तुसी इसनू रीड ओनली लिख सकते हो, ठीक है ना। सो रीड ओनली का मतलब की हो गया कि इत्थे मैं हुण कुछ टाइप नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा बट मेरे को टाइप नहीं हो रहा। सो अगर टाइप नहीं हो रहा दैट मीनस कोई वैल्यू मैं पहला दे सकदा इत्थे। सो वो वैल्यू देने के लिए मैं की लिखूंगा, वैल्यू इक्वल्स टू लेट्स से माई, मैं आपका नाम लिख देना इत्थे, ठीक है ना। सो मैं इसनू दोबारा रीलोड करता, सो मेरा इत्थे नाम आ गया। मैं इसनू चेंज नहीं कर सकूंगा, बस मैं इसनू सिलेक्ट कर सकदा, इसनू सिलेक्ट कर सकदा, इसनू कॉपी कर सकदा। रीड ओनली है, ठीक है ना। रीड ओनली दे नाल नाल एक एट्रीब्यूट होर असी यूज कर सकते हैं, दैट इज डिसेबल्ड। अगर तुसी चाहुंदे हो कि कोई फील्ड थोड़ा बाय डिफॉल्ट जो पेज लोड हो रहा है उदों डिसेबल होवे एंड उसनू अगे जाके तुसी जावास्क्रिप्ट दी हेल्प दे नाल एनेबल करो, तां उस तरह दी तुसी चीज भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो डिसेबल्ड है, सो रीलोड करोगे देखोगे कि जमा ही डिसेबल हो गया, ठीक है ना। इत्थे कोई मतलब ये जिहड़ा फॉर्म एलिमेंट है जमा ही डिसेबल हो गया। डिसेबल का मतलब की है राजे कि इसकी जो वैल्यू है वो भी पास नहीं होणगी अगे, ठीक है ना। सो ये डिसेबल का ये मतलब है, बट रीड ओनली केस च वैल्यूज अगे जाके पास हो जाएंगी। ओके, सो ये तो हो गया जी अपने को आ वाला केस, ठीक है। उस तो बाद आपां कुछ होर प्रॉपर्टीज देख लैंदे इसदियां भी अगे होर की चीज़ां आपां इनपुट टाइप यूज कर सकते हैं। इनपुट टाइप च कल्ला टेक्स्ट नहीं हुंदा, इनपुट टाइप च बहुत चीज़ां हुंदियां। इनपुट टाइप टेक्स्ट तुसी कित्थे यूज कर सकते हो? इनपुट टाइप टेक्स्ट तुसी सो टेक्स्ट बॉक्सेस जिहड़े है इनपुट फील्ड्स, इन्हां नूं तुसी सिंगल लाइन डेटा कलैक्ट करन दे लई यूज कर सकते हो। जिवें फॉर्म दे विच देखदे हो ना जिथे एड्रैस लाइन 1 लिखी हुंदी है, एड्रैस लाइन 2 लिखी हुंदी है, ठीक है, उत्थे तुसी इसनूं यूज कर सकते हो। पिन कोड एंटर करना है तो पिन कोड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो पिन कोड दे लिए यूज कर सकते हो। एंड उस तो बाद की कर सकते हो, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, इन्हां चीज़ां दे लिए तुसी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जिथे डेटा थोड़ा है ज्यादा नहीं। उस तो बाद नैक्सट रो क्रिएट करते हैं आप। नैक्सट रो दे विच मैं लिखदा पासवर्ड, ओके। तो पासवर्ड दे लिए मैं की चीज सॉरी रो तो बाद आपां कॉलम भी क्रिएट करना है। सो मैं इत्थे लिखूंगा पासवर्ड, ओके। नाउ कॉलम इत्थे मेरे को पासवर्ड दे विच मैं अगेन इनपुट टाइप सॉरी इनपुट देन उस तो बाद मैं इत्थे
अगर कॉलम दे के पासवर्ड लिखदा तो मेरे को ऑटोमेटिकली इत्थे पासवर्ड नेम आईडी सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, सो पासवर्ड ਲਈ मैं लिख सकदा इत्थे माई पासवर्ड एंड सेम चीज मैं आईडी ਦੇ ਵਿੱਚ भी लिख सकदा, ठीक है। एंड इसमें की कर सकदा सेव करके रीलोड कर। तो पासवर्ड देखोगे मैं कुछ भी टाइप कर रहा तो मेरे को हमेशा पासवर्ड ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਲੌਗਇਨ ਪੇजेस ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਇਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਾ, ठीक है ना, कि की आई मतलब की एंटर किया जा रहा है। सो ये पासवर्ड हो गया जी। उस तो बाद आप अगे की कर सकते हैं, इस दे विच अगे आप कुछ अगर तुसी मोबाइल नंबर लेने हैं, सो फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर, ठीक है ना, सो तुसी उत्थे की कर सकते हो एंड उत्थे तुसी लेट्स से इनपुट देन नंबर, इनपुट नंबर हुंदा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर लिख सकते हो। सो माई फोन एंड उस तो बाद माई फोन, ठीक है ना, एंड इसको दोबारा रीलोड करोगे तो देखोगे इतने मोबाइल नंबर आ गया बट इतने ABC नहीं लिखा जा रहा, इतने 981543 जो भी है नंबर एंटर किए जा रहे हैं, बट देखोगे थोड़ा जा ज्यादा बड़ा नंबर एंटर किया जा रहा है। सो उस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसनों किवें कर सकते हैं, ठीक है ना, उसनों जावास्क्रिप्ट की हेल्प के नाल कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर दे विच एक चीज तुसी होर लगा सकते हो, मैक्स ते मिन लगा सकते हो, ठीक है ना। सो मैक्स लगा सकते हो, मैक्सिमम अगर मैं चाहा कि नंबर मेरा कितना होवे, कोई भी नंबर मैं मान लो स्टार्ट करना है, मैं मैक्सिमम नंबर मेरा 3 तो स्टार्ट होवे, देन उस तो बाद मैं कह रहे हैं कि जो नंबर है मेरा लेट्स से जो मिनिमम नंबर है वो मेरा कितना होवे, मैक्सिमम नंबर लेट्स से मैं कह रहे हैं कि मेरा नंबर होवे 10 एंड मिनिमम नंबर होवे मेरा लेट्स से 3, ठीक है। सो मैं इसको रीलोड कर रहे हैं, ठीक है। तुसी देखोगे इत्थे कोल मैं 5 लिख पा रहे हैं, मैं 1 लिख पा रहे हैं, बट मैं अगर इसको सबमिट करूंगा आगे जाके तो मेरे को दिक्कत आएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं नंबर जो है उसनों 1 ਜਿਹੜਾ है वो सबमिट नहीं कर पाऊंगा। सो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ सबमिट बटन क्रिएट कर ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜੇ। सबमिट बटन क्रिएट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, क्योंकि देखो इतने 2 कॉलम क्रिएट हो रहे हैं, पहला कॉलम ते दूजा कॉलम। हुण सबमिट वाला बटन मैं एक ही कॉलम च चाहना तो मैं की यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा कोल स्पैन। कोल स्पैन का मतलब की है कि 2 कॉलम्स ਨੂੰ कंबाइन कर दे, ठीक है ना। सो 2 कॉलम्स ਨੂੰ कंबाइन करता, सो इनपुट इक्वल्स टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट आ गया अपने को, एंड उस तो बाद इत्थे मैं लिखता कि सबमिट योर डेटा, ओके। एंड उस तो बाद इसको रीलोड कीता, एंड उस तो बाद अगर मैं इत्थे 3 लिख रहे हैं, सॉरी इत्थे मैं अगर 1 लिख रहे हैं, ठीक है, सबमिट कर रहे हैं तो इतने मैसेज आ रहा है मेरे को कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, यानी ये मेरा डेटा नहीं ले रहा। जावास्क्रिप्ट दे विच जेड़ा ए जे HTML5 का फीचर है, ठीक है ना, क्योंकि पहला जेड़ा आपां करदे सी आपां जावास्क्रिप्ट दे नाल करदे सी, जावास्क्रिप्ट दे नाल की करदे सी, पहला वैल्यू पिक करदे सी, फिर वैल्यू नु चेक करदे सी कि ये 3 तो ग्रेटर तो नहीं है, सॉरी 3 तो लेस तो नहीं है, ठीक है। बट आजकल तो बहुत ईजी है, तुसी मैक्स ते मिन डिफाइन करो एंड ऑटोमेटिकली थोड़ा हो थे थोड़ा मैसेज देने लग जाएगा अगर तुसी नंबर ज्यादा या कट एंटर करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 11 नंबर एंटर कर रहे हैं तो मैंने कह रहा है कि वैल्यू मस्ट बी लेस दैन और इक्वल टू 10, ठीक है ना। सो मैक्स ते मिन जड़ियां चीज़ां ने तुसी डिफाइन कर सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट अपने को होर इनपुट दे विच की चीज़ां आपां ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो वो भी आपां देख लेंगे हैं। लेट्स से इनपुट इनपुट दे विच होर की चीज़ां ने, कलर ऐड कर सकते हो तुसी, ठीक है ना। सो कलर ऐड कर सकते हो। सो कलर दे लई एक आपां कॉलम बना लेने, सो माई फेवरेट कलर लेट्स से, ठीक है ना। नाउ कलर दे लई तुसी इत्थे दे सकते हो माई कलर, ओके, एंड सेम वाइज इत्थे आईडी दे सकते हो माई कलर। एंड उस तो बाद इसको दोबारा रीलोड करोगे तो तुसी देखोगे इत्थे माई फेवरेट कलर पहला एक कलर सिलेक्ट होके आ गया, उसको मैं क्लिक कर रहा था, उस तो बाद मेरे को एक सारा कलर पैनल खुल रहा है। सो मैं कलर दे विच जाके कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकदा, वो ऑटोमेटिकली मेरे को कलर सो लेट्स से मेरे को कलर जेड़ा भी है मैं सिलेक्ट करना चाहना, सो मेरे कलर इत्थे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया जी कलर। उस तो बाद होर की कर सकते हैं इनपुट दे विच, ठीक है, वो भी देख लेने आप। नाउ इनपुट उस तो बाद तुसी डेट दे सकते हो, ठीक है, डेट डिफाइन करनी है। सो
माई लेट्स से बर्थ डेट, ठीक है ना। सो मैं इदा यूज कर सकदा। एंड उस तो बाद देखो ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਵੱਡਾ, ਥਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਵੱਡਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਫੋਰਥ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਵੱਡਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਲ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, दैट इज ओके, ठीक है ना। बट स्पेसिस ना यूज करें क्योंकि वो अगे जाके फिर थोड़ा दिक्कत देगा, ठीक है। सो इतने मैं एक लिख लेना DOB, देन इसको दोबारा रीलोड कर लेना तो देखोगे इतने मेरे को लिख किया गया डेट ऑफ बर्थ आ गया। अगर मैं इतने क्लिक करता तो मैं इतने जाके पूरे का पूरा कैलेंडर ओपन कर सकता, ठीक है। तुम देख पाओगे इतने मैं पूरे का पूरा कैलेंडर ओपन कर रहा हूँ, तुम कैलेंडर देख सकते हो इतने। एंड थोड़ा जा मैनू जूम आउट कर लेना, सो कैलेंडर थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। सो कैलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ईयर ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ईयर ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। क्रॉस ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਡੇਟ ਵਾਪਸ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। बट अजकल ये सारी चीज़ें HTML5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟਾਈਪ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਕੇ। ਸੋ ਈਮੇਲ ਅਗਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ईमेल इज लाइक दिस। एंड उस तो बाद इसमें की करोगे तुम रीलोड करोगे दोबारा, ठीक है। रीलोड करके देख दो तो इतने ईमेल आ गई। एंड ईमेल दे विच अगर तुसी इत्थे कल्ला ABC लिखते हो एंड इसनू सबमिट करते हो तो इत्थे एक मैसेज आ रहा प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रैस। मतलब ये ईमेल एड्रैस सही नहीं। सो अगर मैं @ लिखदा तो फिर मैनू की कह रहे हैं भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। फिर मैं ABC लिखदा, ठीक है ना। सो उस तो बाद की है मेरे को, ठीक है ना। सो उस तो बाद मेरे को किया मैनू डोमेन नेम आ लिख के फिर उस तो बाद मैं इसको डोमेन नेम लिखूंगा, दैन ये मेरे को एक वैलिडेटेड आ जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज मेरे को किया है एक एरर मैसेज, ठीक है ना। सो बेसिक जो चेक है तुसी वो लगा सकते हो ईमेल के ऊपर, ठीक है। नाउ नैक्सट अपने कोल आपां होर इस दे विच इनपुट टाइप दे विच की कर सकते हैं। अगर तुसी कोई फाइल सबमिट करनी है, ठीक है, तुसी कुछ अपलोड करना है। मान लो मैं कह रहे हैं कि मैं फोटो अपलोड करनी है। सो फोटो तुसी अपनी अपलोड करो तो उस तो बाद मेरे को इत्थे की आ जाएगा, मेरे को इत्थे सिलेक्शन आ जाएगा। सो सिलेक्शन तो मैं की कर सकता इत्थे जाके अपनी कोई भी फोटो है, कुछ भी है, कोई भी डॉक्यूमेंट है मैं इत्थे अपलोड कर सकता। हालांकि इस दे नाल थोड़ी फोटो अपलोड नहीं होएगी, मतलब इस दे विच कुछ और चीज़ां भी करनियां पैंदियां ने। बट फिलहाल जो आपां डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ आपां फ्रंट एंड डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्रंट एंड की गल कर रहे हैं। सो फ्रंट एंड दे विच ये चीज़ आपां इत्थे ऐड की, ठीक है ना। सो फोटो एंड उस तो बाद नैक्सट होर चीज़ आप इत्थे की ऐड कर सकते हैं। सो अगेन इनपुट टाइप आप इत्थे होर देख लेने हैं। सो उस तो बाद है काफ़ी कुछ है। एक हिडन पैरामीटर हुंदा है। मान लो तुसी कोई इदां दी इन्फॉर्मेशन पास करनी चाहुंदे हो, ठीक है ना, जिहड़ी यूजर नूं ना दिखे बट नैक्सट पेज पे चली जाए। सो हिडन इन्फॉर्मेशन मैं मान लो कह रहे हैं हिडन इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। सो मैं इतने वैल्यू मैं यदि वैल्यू लिख रहे हैं लेट्स से हिडन इन्फो, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू लिख रहे हैं एंड सेम वाइज मैं इसका नाम भी दे देना इतने, ठीक है। एंड इसको जो मैं रीलोड कर रहे हैं तो देखोगे इतने कुछ नहीं आया, बट कंट्रोल ते यू प्रेस करके या राइट क्लिक करके सोर्स व्यू करके व्यू पेज सोर्स करके अगर तुसी देखो तो इहदा सोर्स तुहानूं सारा दिखेगा। तो तुसी हिडन देखोगे इत्थे हिडन अपने कोल है, तो दैट मीनस उधर यह वैल्यू जाएगी, सबमिट वाले पेज के ऊपर वैल्यू यह जाएगी, बट यूजर नूं नहीं दिखती, ठीक है ना। सो इदां दी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो असीं उत्थे इसनूं यूज कर सकते। ओके, नाउ नैक्सट अपने कोल होर आपां इस दे विच की ऐड कर सकते हैं।
सो टेबल रो वंस अगेन टेबल डेटा देन वंस अगेन इनपुट इनपुट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਇਮੇਜ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਮੰਥ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ रेंज एंटर करनी है कोई रेंज एंटर करनी है किसी चीज की रेंज ठीक है ना सो रेंज ऑफ वैल्यू ठीक है ना सो एंड ये अगर तुसी एंटर करना चाहते हो कोई सिलेक्शन करनी चाहते हो कोई रेंज की सिलेक्शन करनी चाहते हो तो तुसी उत्थे इस चीज को यूज कर सकते हो सो लाइक दिस वन सो स्लाइडर आ जाता अपने को रेंज आ जाती है अपने को ठीक है ना सो इसमें तुसी यूज कर सकते हो ओके नाउ नेक्स्ट अपने को होर इस दे विच आपां की परफॉर्म कर सकते हैं इनपुट के केस दे विच इनपुट वंस अगेन एंड उस तो बाद अपने को रीसेट फंक्शन भी है सो रीसेट फंक्शन असी यूज कर सकते हैं उसको आपां देख लेने नीचे कितना रीसेट में यूज करांगे देन यूआरएल फंक्शन है टेलीफोन फंक्शन है सो टेलीफोन फंक्शन है कलर टाइम फंक्शन है टाइम यूज कर लो वीक फंक्शन है उसमें यूज कर सकते हो ठीक है ना सो ये काफी तरह के फंक्शंस है इस तो बाद दो चीज़ां मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट ने वो थोनों इत्थे डिस्कस करनी चाहूंगा दैट इज इनपुट इक्वल्स टू चेक बॉक्स तो चेक बॉक्स इत्थे आपां यूज करते हैं ठीक है ना सो चेक बॉक्स बेसिकली की चीज़ है अपने को उसका मैं थोनों एक आइडिया देना इत्थे फॉर एग्जांपल असी कोई भी व्हीकल सिलेक्ट कर ठीक है ना सो व्हीकल दे विच साडे कोल की आ जाणगे लेट्स से व्हीकल एंड उसके बाद अगेन व्हीकल ठीक है एंड उसके बाद इसकी तुसी वैल्यू दे सकते हो फॉर एग्जांपल कार एंड उसके बाद इत्थे नाल लिखोगे कार इत्थे इहदे नाल लिखना जरूरी है क्योंकि अदरवाइज ये डिस्प्ले च नहीं आएगा डिस्प्ले च पता नहीं लगेगा कि कार दी सिलेक्शन है या कादी सिलेक्शन है मल्टीपल इनू कॉपी कर लो हमेशा याद रखना है कि अगर तुसी चेक बॉक्सेस का एक ग्रुप बना रहे हो फॉर एग्जांपल मैं व्हीकल का एक ग्रुप बना रहे जिस च कार है ठीक है लेट्स से बाइक है एंड लेट्स से स्कूटर है ठीक है ना सो मैं एक ग्रुप बना रहा सो दिस इज कॉल्ड ग्रुप किदा ग्रुप है व्हीकल का ग्रुप है तो उस केस दे विच नेम जिहड़ा है उन्होंने सेम रखना ये हमेशा याद रखना मान लो इस तो बाद मैं व्हीकल तो बाद लेट्स से मैं कोई गैजेट्स का बना रहे हैं जिस मोबाइल है लैपटॉप है कंप्यूटर है तो उसका नाम अलग होएगा सो ग्रुप एक पूरा ग्रुप है ये हमेशा याद रखना सो एक ग्रुप है तो ग्रुप करके इसका नाम जो है वो सेम है ठीक है सो इसको मैं रीलोड करदा तो तुसी इत्थे देखोगे एक चेक बॉक्स आ गया चेक बॉक्स का डिफरेंस क्या मैं चेक बॉक्स मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता सो चेक बॉक्स का ये फायदा है कि अगर तुसी एक तो ज्यादा सिलेक्शन करनी चाहो तो तुसी उसनू की कर सकते हो क्लिक कर सकते हो सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है एंड इसी तरह अपने को एक हुंदा रेडियो बटन फॉर एग्जांपल रेडियो बटन सो रेडियो बटन जिवें जेंडर है तो जेंडर के केस दे विच ऑब्वियसली वी हैव टू सिलेक्ट अ सिंगल कैटेगरी सो एक कैटेगरी असी सिलेक्ट करांगे ठीक है ना सो एक कैटेगरी असी सिलेक्ट करांगे एंड इस दे विच असी की फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकंड इस दे विच असी अलग-अलग जो कैटेगरीज है उसी डिफाइन कर लेने हैं ठीक है एंड उसके बाद इसनू कॉपी किया आपां इत्थे एंड अगेन इसनू कॉपी कर लिया क्योंकि जिहड़ियां ये वैल्यूज ने ना मैं वैल्यूज दे विच क्यों लिख रहा क्योंकि जो दूसरे पेज पे जाणगियां तां ये वैल्यूज इत्थों पिक होणगी ते ये इत्थे क्यों लिखिया इत्थे तां करके लिखिया ताकि तुहानू दिखे क्योंकि अगर मैं इत्थे मान लो इसनू नहीं लिखदा ठीक है मैं इसनू नहीं लिखदा ते मैं इसनू सिंपली रीलोड कर दिंदा तां तुहानू इत्थे पता नहीं लगेगा कि किहड़ा सिलेक्ट करना है ठीक है ना सो इस करके इत्थे लिखना जरूरी सी एंड एक चीज होर आपां रह गई तो टाइप चेक बॉक्स की जगह ते असीं की करना रेडियो करना सो इसनू भी आपां की कर दिंदे रेडियो कर दिंदे एंड उस तो बाद इसनू भी करदे आपां रेडियो करना ठीक है एंड दोबारा रीलोड करदे तो हुण देखोगे तुसीं इत्थे एक रेडियो बटन आ गया इत्थों मैं सिलेक्शन करूंगा बट एक सिलेक्शन होएगी मेरे को ठीक है कोई दो सिलेक्शंस नहीं होंगे चेक बॉक्सेस का की रोल है कि मैं मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकदा रेडियो बटन्स का की रोल है कि मैं सिंगल सिलेक्शन कर सकदा ठीक है एंड जिहड़ा मैं जिहड़ी मैं गल कीती सी कि एक पूरे ग्रुप का एक नाम सेम रखोगे वो कंसैप्ट इस च भी लगेगा अगर जेंडर है जेंडर दे विच अगर 3 ऑप्शंस ने तो तिन्ना दा नाम सेम होएगा ये नाम अलग ना कर लियो अगर अलग करता तो दैट मीनस वो वैल्यू जिहड़ी है वो इस ग्रुप का पार्ट नहीं रह जाएगी सो इस करके इन्हां दा नाम सेम रखना है ठीक है
एंड उस तो बाद एक जो लास्ट चीज है अपने को रीसेट बटन है, रीसेट बटन आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसਨੂੰ इथों वापस हटा देना, ठीक है, ताकि मैंने एक होर कॉलम चाहिए। सो एक होर कॉलम के लिए मैं इत्थे जो है इनपुट रीसेट बटन लिख देना। सो रीसेट, सो इनू मैं करदा रीसेट एंड सेव करदा। सो रीलोड करते हैं आप वापस। सो इस जो भी चीज़ है आप इतने 1 2 3 या जो भी है अपने को इतने आप चीज़ें सारियां ऐड कर सकते हैं। ईमेल @@.com, ठीक है ना। सो जस्ट अ सेकंड, कार बाइक देन सिलेक्शन रेंज कर ली, ठीक है। एंड उसके बाद कोई फोटो सिलेक्ट करनी है, कुछ भी सिलेक्ट करना आप इतने सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल दिस। एंड उसके बाद इसमें अगर रीसेट कर दो तो सारियां वैल्यूज वापस डिलीट हो जाएंगियां ते फॉर्म दोबारा रीसेट हो जाएगा। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ठीक है। एंड so check boxes आपने cover up हो चुके हैं, we had covered the check boxes also, we had covered the radio buttons, then उस तो बाद ਆਪਾਂ जो submit and reset button भी देख ले, menu and list ये ਆਪਾਂ next lectures देखांगे। एंड सो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब डेटा किदा है, सो डेटा डेटाबेस ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ठीक है। सो ये सारियां चीज़ां ਆਪਾਂ देख चुके हैं ऑलरेडी। एंड इस तो बाद जो बाकी जो बच गए ने टैक्सट एरिया हुंदा है, उस तो बाद नेक्स्ट अपने कोल टैक्सट एरिया तो बाद अपने कोल मेन्यू ऑप्शंस है, ड्रॉप डाउन्स है, डेटा लिस्ट है, वो चीज़ां देखांगे। वो चीज़ां जो ਆਪਾਂ देख लिया तो उस तो बाद एक HTML ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੂਟਸਟ੍ਰੈਪ। ਸੋ ਬੂਟਸਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। सो आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ठीक है। सो बेसिक फॉर्म कितना क्रिएट करना, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।